Students, welcome again. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ how to find the asymptotes of the curve. Some special cases. Suppose ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ curve ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ x cube minus x square y minus xy square plus y cube plus 2x square minus 4y square plus 2xy plus x plus y plus 1 equal to 0. ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਅਸਿਮਪਟੋਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ x ਹੈ 3 ਤੇ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ 1 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਟਰਮ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਪੈਰਲਲ ਅਸਿਮਪਟੋਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਿਮਪਟੋਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸਿਮਪਟੋਟਸ ਪੈਰਲਲ ਟੂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਆਫ y ਇਸ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਕਿਊਬ ਇਜ਼ 1 ਅਗੇਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇयर इज नो ਅਸਿਮਪਟੋਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ y ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਬਲੀਕ ਅਸਿਮਪਟੋਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਬਲੀਕ ਅਸਿਮਪਟੋਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ 3 ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ। ਡਿਗਰੀ 3 ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ x ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ y ਮਾਈਨਸ xy ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਕਿਊਬ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ y phi 3m ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ m ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਕਿਊਬ 1 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 'ਚ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ m ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ m ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ y m ਕਿਊਬ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, phi dash 3m will be equal to 1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਮਾਈਨਸ m ਦਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ m ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਾਈਨਸ 2m ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ m ਕਿਊਬ ਦਾ 3m ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ phi 2m ਆ ਜਾਏਗਾ phi 2m। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਹੈ, phi 1m ਆਏਗਾ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ m ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ m ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਓਨਲੀ 1 ਤਾਂ phi 0m ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ m ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਿਮਪਟੋਟਸ ਦੀਆਂ ਸਲੋਪਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ m ਗਿਵਸ ਦਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਅਸਿਮਪਟੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ mx ਪਲੱਸ c ਵਰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ m ਹੈ ਉਹ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ c ਇਜ਼ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ। ਤਾਂ phi 3m ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 1 ਮਾਈਨਸ m ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ m ਕਿਊਬ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ m ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਆ ਮਾਈਨਸ m ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਆਇਆ ਤਾਂ 1 ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ m ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ 1 ਮਾਈਨਸ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਾਈਨਸ m ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ m ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਫਰਦਰ, 1 ਮਾਈਨਸ m ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 1 ਮਾਈਨਸ m ਤੇ 1 ਪਲੱਸ m, ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 m ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 1। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ m ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ m ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, m ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ m ਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਦੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਪੀਟਡ ਵੈਲਿਊਜ਼
एंड बोथ आर इक्वल m इक्वल टू 1 m इक्वल टू 1। तो सब तो पहला असं डिफरेंट वैल्यू है वो वास्ते m इक्वल टू -1 वास्ते c की वैल्यू कढ़ने हैं। इस वास्ते सेम फॉर्मूला ही है फाइव टू एम अपॉन फाइव डैश 3m। फाइव टू एम साढ़े कोल है ये वाला, इसकी वैल्यू हैगी है 2 - 4m स्केयर प्लस 2m। असी m की वैल्यू -1 पुट करिए, एक्चुअली इतने -1 आएगा, -1 अपॉन -1 पुट करिए 5 डैश 3m के -1 पुट करिए तो -1 -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्केयर अपॉन सॉरी असी 5 टू m की वैल्यू पुट करनी सी 5 टू m साडा ए वाला, इस पुट करो -m -1 m इज इक्वल टू -1 -4 इंटू -1 का स्केयर प्लस 2 इंटू -1 का -1 5 डैश 3m असी m इक्वल टू -1 पुट करिए तो -1 आएगा साढ़े को, -2 इंटू -1 प्लस 3m की वैल्यू है -1 का स्केयर। इन सॉल्व करिए साढ़े को, सॉल्व कर साढ़े की आएगा 2 आ गया। इस सॉल्व कर साढ़े को -4 आ गया, इस -1 मल्टीप्लाई करना -2 आएगा, -1 माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये आ गया -1 का स्केयर इंटू 3 +3। तो इस सॉल्व करके सी की वैल्यू साढ़े को 1 आ रही है। तो इस दे कोरस्पोंडिंग m इक्वल टू -1 तो c इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग जी असिम्पटोट होएगी दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c दे विच असी m की वैल्यू -1 तो c की वैल्यू +1 पुट करिए तो कि आएगा y इज इक्वल टू -x प्लस 1 दैट इज x प्लस y इक्वल टू 1। हुण साडे कोल दूसरियां दो वैल्यूज़ हैगियां ने इक्वल टू 1 1 m इक्वल टू 1 1 ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ c ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, c ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈल्यूज़ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। m ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈल्यूज़ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ these two asymptotes are corresponding to first value of m1 and second value of m equal to 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ both asymptotes are parallel, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ c ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਵੈल्यूज़ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, c स्केयर अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 डबल डैश 3m प्लस c इंटू 5 डैश 2m प्लस 5 1m ये यूज़ करांगे। हुण साडे कोल 5 डैश m ए सी, इसनूं अगेन एक बारी होर डिफरेंट कर दो 5 डबल डैश m दैट विल बी इक्वल टू इसनूं होर अगेन डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू m, साडे कोल की आएगा -2 प्लस 6m तो 5 2 डैश m होएगा 5 2 डैश 2 डैश m, इसका डिफरेंशिएट करांगे -8m प्लस 2 आएगा। तो हुण इहदे विच m दियां वैल्यूज़ पुट करिए इस इक्वेशन दे विच m इक्वल टू पुट करना है 1, m इक्वल टू 1 पुट करिए किस दे विच पुट कर रहे सी 5 डबल डैश 3m दे विच, 5 डबल डैश 3m दे विच m की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 5 डैश 2m दे विच असी m की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, 5 2m दे विच असी m की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, 5 1 दे विच भी असी m की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन पुट करने तो बाद m दी वैल्यू साडे कोल की आ रहा c स्केयर अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होएगा 2 होएगा, ये साडे कोल -2 प्लस 6 प्लस c इंटू -8 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। साडे कोल क्वाड्रेटिक इन जिहड़ी है वो c विच आएगी। इसनूं सॉल्व करने तो बाद साडे कोल m c ਦੀਆਂ दो वैल्यूज़ आनियां 3 प्लस √5 अपॉन 2 तो 3 माइनस √5 अपॉन 2। दैन कोरस्पोंडिंग असिम्पटोट्स विल बी इक्वल टू, क्योंकि असिम्पटोट की इक्वेशन जी हैगी mx प्लस c वर्गी होएगी, क्योंकि दोनों केसेस दे विच m तो सेम है। तो फस्ट असिम्पटोट आएगी 1x तो c की फस्ट वैल्यू ले रहे हैं 3 प्लस √5 अपॉन 2, दूसरी वैल्यू आएगी प्लस 3 माइनस √5 अपॉन 2। ये साढ़े को दो वैल्यूज़ ऑफ
ਅਸਿਮਟੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਅਸਿਮਟੋਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਅਸਿਮਟੋਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵੈਲੂਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਸਿਮਟੋਟ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਵੈਲੂ ਆਫ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1। ਇਹ m ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲੂ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵੈਲੂ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਸਿਮਟੋਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ y ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ax, ਇੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਿਮਟੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਆਫ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ x in this equation is the coefficient है -4 which is a constant। इसका मतलब there is no asymptote parallel to x axis। coefficient of highest power of y is the coefficient 1 है which is a constant। इसका मतलब दो there is no asymptote parallel to y axis। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 to m ਕੱਢਾਂਗੇ क्योंकि 5 में नहीं आएगा क्योंकि थर्ड डिग्री टर्म इस नहीं है। 5 to m किस तरह आएगा सैकेंड डिग्री टर्म के सैकेंड डिग्री टर्म साड़ी यही है इको ही है। ये जैसे कि पुट कर रहे हैं असी पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू m, तो y इक्वल टू 1 तो है नहीं x तो है नहीं, तो सिर्फ y वाली टर्म्स हैगी इस करके y की वैल्यू असी पुट कर रहे हैं m। तो 5 to m की आ रहा है m स्क्वेयर, 5 डैश टू m की आएगा 2m। 5 1 फस्ट डिग्री टर्म जी हैगी सिर्फ इको ही है -4ax, तो इस असी x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू m पुट करिए तो 5 1m आएगा -4a। 5 to m इक्वल टू 0 रखते हैं, साढ़े को m स्केयर इक्वल टू 0 तो m दी दो वैल्यूज इक्वल ही आनी है m 0 0। हुण जो तुसी m इक्वल टू 0 करांगे तो 5 डैश टू m जिहड़ा वो 0 हो जाएगा क्योंकि m इक्वल टू 0 वास्ते 5 डैश टू m विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि m की वैल्यू 0 है। असी c किवें कड्डांगे c विल बी इक्वल टू 5 1m अपॉन 5 डैश टू m, बट साडे कोल 5 डैश टू m की वैल्यू m इक्वल टू 0 तो एग्जिस्ट 0 है। इसका मतलब होया कि 5 1m अपॉन 0 विच इज़ नॉट डिफाइंड यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये होया कि सी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती फॉर गिवन वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि देयर इज नो असिम्पटोट कॉरस्पॉन्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 0, क्योंकि साढ़े को दोनों m दी वैल्यू 0 0 ने, इस करके इसका मतलब ये होया कि इस पैराबोला दियाँ कोई असिम्पटोट्स नहीं है। नैक्सट ਅਸੀਂ कुछ स्पैशल मैथड पढ़ांगे टू फाइंड द ऑब्लिक असिम्पटोट्स ऑफ ए रैशनल अलजेब्रिक कर्व। पहला मैथड है साढ़े को सपोज कर्व हैगा fxy इक्वल टू 0। पहला मैथड है कि जेकर असी कर्व की इक्वेशन इस फॉर्म च लिख सकीए, जेकर कर्व की इक्वेशन इस फॉर्म च है साढ़े को इत्थे एक लीनियर फैक्टर है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इंटू fn माइनस 1 xy तो gn माइनस 1 xy वेयर n इज द डिग्री ऑफ कर्व, वेयर n is the degree of curve। the asymptote of the curve which is parallel to ax plus by plus c equal to 0 होएगी, that will be equal to this factor linear factor plus limit of gn minus 1 xy upon fn minus 1 xy when x approach to infinity and y upon x approach to minus a upon b। दूसरा मैथड की है कि जेकर साढ़े को इसके एक फैक्टर की बजाय दो फैक्टर इस तरह आ रहे हैं कॉमन ax प्लस by का होल स्केयर इंटू 2 f2n माइनस 1 n माइनस 2 xy प्लस gn माइनस 2 xy इज इक्वल टू 0। जेकर साढ़े कर्व की इक्वेशन इस फॉर्म की है तो दो असिम्पटोट्स आनियाँ पैरल टू ax प्लस by दे विच आर गिवन बाय द इक्वेशन ax प्लस b होल स्केयर by होल स्केयर plus limit as x approach to infinity and y upon x approach to minus a upon b
ऑफ जी एन माइनस टू एक्स वाई एफ एन माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इस साढ़े कोल दो लिमिट्स आउणगियां, इन्हां दोनों लिमिट्स जेकर एग्जिस्ट करदियां ने तो साढ़े कोल असिमटोट्स पैरल टू ए एक्स प्लस बी वाई दे इक्वल टू जीरो के पैरल साढ़े कोल दो असिमटोट्स आउणगियां। थर्ड है जेकर असी करव की इक्वेशन नूं इस फॉर्म 'च लिख सकीए, जेकर करव की इक्वेशन साडी इस फॉर्म की है यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई होल स्केयर एफ एन माइनस टू एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इंटू जी एन माइनस टू एक्स वाई प्लस एच एन माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। साढ़े कोल दो असिमटोट्स होणगियां पैरल टू ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो विच आर गिवन बाय ए एक्स प्लस बी वाई होल स्केयर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इंटू लिमिट एज एक्स अपोज टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स अपोज टू माइनस ए अपॉन बी जी एन माइनस टू एक्स वाई अपॉन एफ एन माइनस टू एक्स वाई प्लस लिमिट एज एक्स अपोज टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स अपोज टू माइनस ए अपॉन बी ऑफ एच एन माइनस टू एक्स वाई अपॉन एफ एन माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन तो साढ़े कोल करव दियाँ दो असिमटोट्स आउणगियां विच आर पैरल टू ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। वर्किंग मैथड की है? वर्किंग मैथड ये है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म्स नूं फैक्टराइज करो इंटू लीनियर फैक्टर्स, तो एक लीनियर फैक्टर जिहड़ा है उसनूं रख लो तो बाकी लीनियर फैक्टर नाल बाकी सारे जिहड़े है टर्म्स नूं उसनूं डिवाइड कर दो, तो उस तो बाद लिमिट लो एज एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी तो वाई अप्रोच टू इन्फिनिटी। इफ द लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट इसका मतलब है कि नो असिमटोट पैरल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो साडी असिमटोट पैरल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होएगी। नैक्सट मैथड है इंस्पैक्शन असिमटोट्स बाय इंस्पैक्शन। जेकर करव साडा इस फॉर्म 'च असीं लिख सकीए एफ एन एक्स वाई प्लस एफ एन माइनस टू एक्स वाई यानी कि कुछ nth डिग्री टर्म्स ने तो बाकी साड़ियाँ n माइनस 2th डिग्री टर्म्स ने, वेयर साडा एफ एन एक्स वाई एक रैशनल इंटीग्रल फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई जिसकी डिग्री n है, तो एफ एन माइनस टू एक्स वाई जिहड़ा है इसकी डिग्री n माइनस टू है। हुण असीं कुछ क्वेश्चन लैने आ। फॉर एग्जाम्पल साडे कोल ए कर्व है एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इंटू टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इस कर्व दे विच जिहड़ियां हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैगियां ने एक्स क्यूब प्लस टू वाई क्यूब थर्ड डिग्री टर्म जिहड़ियां मल्टीप्लाई कर दो अंदर, मल्टीप्लाई करन तो बाद साडे कोल थर्ड डिग्री टर्म्स ये हैगियां ने। हाईएस्ट डिग्री टर्म नूं असीं फैक्टराइज करिए तो साडे कोल इसदे एक तो एक्स माइनस वाई फैक्टर बनेगा, एक एक्स प्लस वाई फैक्टर बनेगा, एक इसका फैक्टर बनेगा एक्स प्लस टू वाई। इस दे हाईएस्ट डिग्री टर्म्स दे तीन फैक्टर बन रहे हैं। ये हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ने, इन्हें तीन लीनियर फैक्टर ने, ये साडा सैकेंड डिग्री टर्म्स ने तो ये साडी कॉन्सटेंट है इक्वल टू जीरो। तो पॉसीबल असिमटोट्स जिहड़ियां हो सकदियां ने वो पहले फैक्टर एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो के पैरल हो सकता है, दूजा असिमटोट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो यानी कि सैकेंड फैक्टर इक्वल टू जीरो रखिए इसके पैरल हो सकता है, तीसरा फैक्टर एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो तो इसके पैरल जी है थर्ड असिमटोट हो सकती है। तो सैकेंड इक्वेशन क्योंकि वर्किंग मैथड पढ़िया सीगा, फर्स्ट स्टैप की पढ़िया सी कि हाईएस्ट डिग्री टर्म नूं फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने तो बाद एक लीनियर फैक्टर रख लो तो बाकी दो लीनियर फैक्टर नाल पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो। असीं डिवाइड करते हैं तो साडे कोल फर्स्ट टर्म दे सिर्फ एक्स माइनस वाई बचेगा तो इधर वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वन अपॉन की आएगा, बाकी दो फैक्टर आ जाएंगे इसके नीचे इक्वल टू जीरो। हुण जेकर इसके पैरल असिमटोट एग्जिस्ट करता है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती होनी चाहिए कि एक्स माइनस वाई प्लस लिमिट एज एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी तो वाई इक्वल टू एक्स किमें आया क्योंकि असी किस दे पैरल लै रहे हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो के पैरल असी असिमटोट देख रहे हैं तो इतों वाई की वैल्यू कितनी आई एक्स, साढ़े को वाई की वैल्यू की आई एक्स। जो वाई इक्वल टू एक्स हो तो एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो इसकी लिमिट की आएगी, देखो इस असीं पुट करिए की पुट करिए वाई इज इक्वल टू एक्स पुट करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस लिमिट एज एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी
ਅਸੀਂ y इज इक्वल टू x पुट कर दो सारिया टर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ y इज इक्वल टू x पुट करिए तो x माइनस x अपॉन नीचे साढ़े को x प्लस x आएगा क्योंकि y असी y इज इक्वल टू x पुट कर रहे हैं इतने आएगा x प्लस 2x इक्वल टू 0। हुण उपर x माइनस x 0 हो गया साढ़े को आएगा ये सारा टोटल टर्म जी है 0 हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ही आएगा। इसका मतलब होया कि x माइनस वाई इट सैल्फ इज ए असिम्पटोट ऑफ दी कर्व। हुण असी इस फैक्टराइज किए इसके 3 फैक्टर बने सीगे हाईएस्ट डिग्री टर्म के 3 फैक्टर बने सी 3 लीनियर फैक्टर असी पहला इस रिटेन किया तो बाकी 2 फैक्टर नाल असी पूरा इक्वेशन डिवाइड किया सी। हुण असी ये वाला फैक्टर जो सैकंड लीनियर फैक्टर है उसमें रिटेन करते हैं तो बाकी 2 फैक्टर नाल असी पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दें तो साढ़े को आएगा ये आएगा x प्लस वाई एंड y इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। हुण असी लिमिट लैने एज क्योंकि हुण असी x प्लस वाई साढ़े को रिटेन्ड फैक्टर है तो इसमें इक्वल टू 0 रखिए तो साढ़े को y की वैल्यू आएगी माइनस एक्स। जो y इक्वल टू माइनस एक्स है तो x इनफिनिटी में अप्रोच करता है इसकी लिमिट की आएगी फिर x प्लस वाई तो एज इट इज़। हुण इस दे विच असीं पुट करांगे जिथे भी y है उत्थे पुट करांगे असीं माइनस एक्स तो इत्थे की आएगा x माइनस इंटू माइनस वाई की वैल्यू है माइनस एक्स क्या आ जाएगा x प्लस एक्स 2x बन जाएगा प्लस 1 अपॉन नीचे साढ़े को आ रहा x माइनस वाई पुट कर रहे हैं असीं माइनस एक्स तो 2x बन जाएगा। इस दे विच असीं पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स तो x माइनस 2x ये साढ़े को माइनस एक्स आ जाएगा। ऊपर नीचे कैंसल करके साढ़े को जिहड़ा है सॉरी जे असी x इक्वल टू साढ़े को आ गया माइनस 2x स्क्वेयर ये साढ़े को बन गया ये बन गया x प्लस वाई प्लस लिमिट एज x अप्रोच टू इन्फिनिटी माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन माइनस 2x स्क्वेयर ऊपर नीचे माइनस 2x स्क्वेयर नाल डिवाइड कर दो साढ़े को आ गया क्या असी इसनू 1 माइनस 2x स्क्वेयर आ गया इसनू ऊपर नीचे एक्स स्क्वेयर डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वेयर जो हट जाएगा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर आएगा नीचे माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर करांगे तो एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा साढ़े को माइनस 2 आएगा। हुण असी जे लिमिट लैने एज एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाएगा तो की बन जाएगा ये एक्स प्लस वाई इस टर्म 0 होगी माइनस 2 अपॉन माइनस 2 ये कैंसिल हो गया 1 आ गया एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 ये साडी असिम्पटोट है पैरेलल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। हुण असीं थर्ड फैक्टर जिहड़ा है लीनियर फैक्टर हाई डिग्री टर्म का ये है इसनूं रिटेन करते हैं तो बाकी दोनों फैक्टर नाल पूरी इक्वेशन नूं डिवाइड कर दिंदे तो डिवाइड करने तो बाद साडे कोल ये आ रहा है। हुण इस फैक्टर एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 रखिए तो y इज इक्वल टू साढ़े को माइनस एक्स अपॉन 2 आ रहा है तो असीं लिमिट लवांगे एज एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी तो y पुट करांगे माइनस एक्स बाय 2 इस दे विच असीं y इक्वल टू माइनस एक्स बाय 2 पुट करो सारियां टर्म्स दे विच ते लिमिट लो एज एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी साढ़े को आएगा असीं y की वैल्यू पुट की है माइनस एक्स बाय 2 उपरले नंबर नूं सॉल्व करिए साढ़े कोल बन गया साढ़े कोल माइनस 3x स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस 1 तो नीचे से सॉल्व करिए तो a माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी साढ़े कोल ए आएगा। हुण उपर नीचे तुसीं आपां डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वेयर नाल इसनूं सॉल्व करके साढ़े कोल ए आ गया एलसीएम जिहड़ा 4 सी कैंसिल हो गया। हुण असीं उपर नीचे एक्स स्क्वेयर डिवाइड करिए तो साढ़े कोल बचेगा 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 3 अपॉन 3 जो एक्स इन्फिनिटी में अप्रोच करता है तो 4 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा साढ़े कोल माइनस 3 अपॉन 3 बचा माइनस 1 आ गया तो एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इज़ द थर्ड एसिम्पटोट। तो ये कुछ स्पैशल मैथड सी जिस नाल असीं किसी गिवन कर्व दियां
ਓਬਲੀਕ ਅਸਿਮਟੋਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।